right, good evening and welcome to the 7th day of 30 Days Vocabulary Challenge by Raman. And congratulations, you have unlocked the week 1 bonus content that's completely free of cost. So it's a great milestone that we have activated. Okay, so now this is the 30 Days Vocabulary Challenge by Engliholics, and my name is Raman. This is best suitable for students who are preparing for IELTS exam, PTE, TOEFL, or simply students who want to improve their spoken English skills. So this is the 7th day. Let's quickly set some rules. Keep your notebook and pen handy. And today, it's going to be we will be little faster because we have lot to cover. There's the bonus content as well which will be included. Feel free to take the screenshot if you're not able to make the notes in the real time. You would show respect to everyone because you might see the words on the screen which you already know, but there would be some other students who would not know that, so please be respectful to everyone in the meeting. Please do not spam the chat box. So I'll give you 5 words for the day and I'll translate them into Hindi and Punjabi. Okay. And sentence formation will also be there for each word. So you'll create the sentences real time. And if there is any question, you can ask in the chat box. Sessions are completely free, but do not misbehave and do not do any disrespectful things. Just take this as a learning opportunity. Please don't write anything nonsensical in the chat box. Okay. All right, and you can ask the questions. All right, so a little bit about me. I am a serial entrepreneur. I run and own multiple businesses in the field of immigration, marketing, health and wellness, training and development. I've scored 8.5 bands in the IELTS exam. I've written and published various ebooks. I'm national award winner, and this is one of my best-selling ebook. These are the businesses that I currently own and manage. Okay, so we have the first word on the screen for the day 7th vocabulary challenge. Please stay tuned because we have the bonus content today. Okay, all right, so the first word on the screen is arduous. Arduous. Okay, it means mushkil, like something which is very tiresome, like जो थकाने वाला हो, tiresome, like very difficult, burden, like कभी हम बोलते हैं ना, तो it's मुश्किल, कठिन. ठीक है, let's see the sentences. Climbing the mountain was an arduous task for the team. अब इसकी जो pronunciation है, यहाँ पे जो D आप देख रहे हो, ARDUOUS, it means arduous. Okay. अब इसमें जो डी है वो डी एज इन दिल्ली वाला नहीं बोलना, जी एज इन जिराफ, जी एज इन जैसे ज साउंड, जहाज वाला ज बोलना है, आर्जुअस. ओके, सो द क्लाइंबिंग द माउंटेन वाज एन आर्जुअस टास्क फॉर द टीम. द जर्नी थ्रू द डेजर्ट वाज लॉन्ग एंड आर्जुअस. रेगिस्तान दी यात्रा लंबी अते मुश्किल सी. Okay. Now, if any one of you wants to make the sentence, you can type in the chat box using the word arduous. It means mushkil, kathin. You can see the translations on the screen. See the translations on the screen. And try and make sentences. So today I'll not wait for a long time because I have a lot to cover, because the bonus content has also been unlocked. It's the 7th day of the daily vocabulary challenge. So come on, make it quick if you want to make a sentence, otherwise I'll move to the next word. Okay, so we have, my science paper was long and arduous. The preparation was like, a preparation के लिए बोल सकते हो, not really exam. या फिर ऐसे बोल सकते हो, the syllabus is, हाँ, CA degree
arduous task. Yes, correct. Okay, very good. Let's move on to the next word. It's meticulous. Meticulous. अगर आपको याद होगा हमने एक वर्ड किया था इन डे लाइक यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे, इट वाज कंसेंशियस. कंसेंशियस उसका मतलब था अलर्ट, कॉन्शियस के साथ रिलेटेड था. लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि कॉन्शियसली काम करो, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ अ सिनोनिम. ओके. ओके, सो पीपल आर ज्वाइनिंग नाउ. मेटिकुलस. मेटिकुलस मीन्स सावधान. तो इसका भी सेंटेंस का एग्जांपल देखते हैं क्विकली. इट मीन्स शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, ensuring every detail is perfect. She is meticulous. Meticulous मतलब सावधान, लाइक अलर्ट, मतलब जो अपने काम को बहुत ध्यान से और बहुत कंसंट्रेशन के साथ करते हैं, दैट उसमें यूज कर सकते हैं. ये एडजेक्टिव है, तो मतलब शी इज मेटिकुलस इन हर वर्क, ये उसकी एक स्पेशलाइजेशन है. देन हिज मेटिकुलस प्लानिंग. किस तरह की प्लानिंग? मेटिकुलस प्लानिंग led to the project success. ਉਸਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ. Okay, in the chat box make sentences, and please don't take too much of time, we have bonus content coming up using the word meticulous. हिंदी पंजाबी बोथ ट्रांसलेशन स्क्रीन पे है. जिस भी लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल हो, ਤੁਸੀਂ ट्रांसलेशन चेक करके try and make sentence. And pronunciation would go like meticulous. Meticulous. You can repeat after me, like once I speak आप मेरे पीछे repeat कर सकते हो. Meticulous. Okay, quickly make sentences. Meticulous. Okay, guys, don't take too much time today. Okay, I'm moving on to the next. Okay, he was so meticulous about everything. Okay, we can consider that. So I'm moving on to the next word, which is proficient. Proficient, which means निपुण, मतलब किसी चीज में जो अच्छी तरह से कोई चीज जिसको आ जाती है वो उसमें परफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं proficient. So she is proficient in several languages, making her a valuable asset to the team. तो ਉਹ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ एसेट, मतलब जो एक अच्छा टीम मेंबर उसको बनाती है, मतलब वो वैल्यूएबल है. नेक्स्ट एग्जांपल, ही बिकेम प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द पियानो आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस. उसने कई सालों की प्रैक्टिस के बाद वो प्रोफिशिएंट हो गया. ठीक है, प्रोफिशिएंसी क्या होती है? प्रोफिशिएंसी मतलब निपुणता, कुशलता, किसी चीज में परफेक्ट हो जाना, और ये जनरली यूज होता है किसी स्किल में. Okay, now quickly make sentences. Proficient. Proficient. Students late join मत किया करो अभी. I still see that people are joining now. ऐसे बीच में join करोगे कोई benefit नहीं होगा आपको. You'll not be able to understand things. Okay. Okay. Proficient. Proficient. Sentence बनाओ इसका. Okay, Mannat, correct. Thank you, Mannat. Okay. What about others? Proficient. Proficiency. Proficient. She is proficient in many languages. Correct. Okay, moving on to the next word. Fourth word of the day 7 vocabulary challenge. It means astute. Astute. इसका मतलब होता है चतुर. अब किसी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये चतुर पॉजिटिव वाला होगा. लाइक कई बार किसी को ऐसे बोलते हैं ना कि वो बड़ा क्लेवर है, वो बड़ा चालाक है, चतुर है, वो बहुत चतुराइयां करता है, बट नेगेटिवली नहीं.
पॉजिटिव वाला जो चतुर किसी को अगर बोलना होगा तो उसमें हम बोलेंगे astute. ओके, देखो सिंपल वर्ड्स को मतलब ऐसे आप याद कर सकते हो. देखो एग्जाम्पल देखो स्क्रीन के ऊपर. हिज astute observations helped solve the mystery. ਉਹਦੀਆਂ ਚਤੁਰ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਨੇ, ऑब्जर्वेशन क्या मतलब होता है, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, रहस्य को सुलझाने ਚ मदद की. She made an astute decision to invest in the stock market. अब ये किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हो, she or he is an astute person. ओके, किसी के ऑब्जर्वेशन के लिए भी बोल सकते हो, किसी के डिसीजन को भी बोल सकते हो. ठीक है, तो चतुर वर्ड मतलब जैसे एग्जैक्ट वर्ड मतलब हम वैसे क्या बोल देते हैं, क्लेवर, या फिर हम बोलते हैं ना वो बड़ा स्मार्ट है, स्मार्ट पर्सन, वो चीजों को स्मार्टली हैंडल करता है, चतुराई दे नाल हैंडल करता है, तो उसमें बोलेंगे अस्तूट. अब ये बहुत इजी है, इसका फटाफट से सेंटेंस बनाओ. ट्रांसलेशन देखो स्क्रीन के ऊपर एंड मेक सेंटेंसेस. डू नॉट टेक टू मच टाइम, इसका बहुत इजीली बन सकता है. अस्तूट, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दो. अस्तूट, अस बोलना है पहले, अस्तूट. ठीक है, make it fast. We have lot to cover today. We have bonus content coming up, which is very useful for you. Okay. Her astute observation to find, okay, her astute, Arpita has made a sentence. Her astute observation to find accountancy solution. इसको ऐसे बोल, थोड़ा सा रिफ्रेश करूंगी मैं इसको, वैसे सही जगह पे लगाया आपने. Her astute observations helped to find the solution, helped to find the accountancy solution. Correct. Okay, next, astute readers will notice the error. Astute readers will notice the errors quickly. Very good. Great. Okay, I'm moving on to the next word. Last word of the day 7 vocabulary challenge. It's cognizant. Cognizant. Okay, repeat after me. अब इसमें जो जी है वो गर्स इन गोवा. ओके, कॉग्निजेंट इसका मतलब अवेयर, सेंसिबल पर्सन के लिए, सिचुएशन के लिए, या अवेयर जो जागरूक, या फिर बड़ा बोलते हैं ना कि वो बड़ा ज्ञानी है इस चीज का, वो बहुत, उसको बहुत नॉलेज है इस चीज की. कॉग्निजेंट, जागरूक, किसी एक चीज को लेके जब कोई अवेयर हो जाता है. एग्जाम्पल, शी इज कॉग्निजेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. वो अपनी स्वस्थ जीवन बनान रखने ली ओदा जो इम्पोर्टेंस है ਉਹਦੇ ਲਈ जागरूक है. बोलते ना इस चीज के लिए जागरूक हो जाओ, मतलब शी इज कॉग्निजेंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल. हेल्दी लाइफस्टाइल का जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए वो जागरूक है, अवेयर है. ओके, द मैनेजर इज कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस द टीम फेसेस. मैनेजर टीम नु जो चुनौतियां हैं उसके लिए जागरूक है, उसको पता है कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो मैनेजर इज कॉग्निजेंट ऑफ द चैलेंजेस. ओके, तो और क्या बोल सकते हैं, सिटीजन्स ऑफ इंडिया शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द वोटिंग राइट्स. उनको अपने वोटिंग राइट्स के बारे में पता होना चाहिए. यू शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ द लॉ ऑफ द इंडिया या गवर्नमेंट, ऐसे. ठीक है, कॉग्निजेंट जागरूक के लिए बोलते हैं ना. अब बनाओ सेंटेंस इसका. कॉग्निजेंट और कॉग्नी, जो ज बोलना है, ज. कॉग्निजेंट, कॉग्नी, ज के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालना. ठीक है, it's the last word of the day. फटाफट से sentences बनाओ, then we have 15 minutes for the bonus content. ट्रांसलेशन चेक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, so that you remember this word. Okay. I'll wait for another 10 seconds. I'll wait for the sentences. That's all right. अगर गलत भी लिख दोगे, it's okay. सब यहाँ पे सीखने के लिए है, including me. Okay. So mistake करने से don't hesitate. मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे. ओके, कॉग्निजेंट मतलब सेंसिबल भी इसका सिनोनिम होता है, अवेयर भी इसका सिनोनिम होता है.
जागरूक। 2-3 सेंटेंसेस तो मैंने ही बता दिए थे इसके। कॉग्निजेंट, कॉग्निजेंट एक कंपनी भी है, मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, सो वी हैव अ सेंटेंस, ही इज cognizant of his duties as a student. Yes, correct. He's cognizant. He's cognizant. For नहीं आएगा, ऑफ आएगा, ठीक है, ऑफ द क्राइम, ऑफ द साइबर क्राइम, ठीक है, बाकी ठीक है। ओके, ऑल राइट, करेक्ट। सो वी this was the fifth word of the seventh day of daily vocabulary challenge, 30 days vocabulary challenge. You should be cognizant about. Yes, correct, Manat. Perfect. Okay, so now we have a bonus content because we have completed the 1 week milestone of 30 days vocabulary challenge, and I have the common idioms and phrases that you can use in your day to day life. Okay, ये बहुत commonly use होते हैं, और अगर आप इन चीजों को अपनी speaking में बोलना start करोगे तो देखो, एक तो होता है कि हम normal conversation करते हैं, अगर आप idioms का, phrases का use करोगे तो it will be more impressive, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट इडियम है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस, अब इसका लिटरली ट्रांसलेशन क्या होता है? बर्फ को तोड़ना। ओके, बट इसका वो मतलब नहीं होता। इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं, जैसे हम हिंदी पंजाबी चापा बोलते हैं मुहावरे, या फिर अखौता, है ना, पंजाबी चापा बोलते हैं मुहावरे या अखौता, ठीक है। तो फर्स्ट जो आज का बोनस कंटेंट है, अभी डेली 5 वर्ड्स के अलावा मैंने कंटेंट प्रिपेयर किया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप 7 डेज रेगुलरली कंटिन्यूअसली एफर्ट्स कर रहे हो, सो जस्ट टू गिव यू द बोनस कंटेंट अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है किसी सिचुएशन में, लाइक सोशली, अगर हम किसी के साथ कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, कभी जैसे देखते हैं कि घर पे रिलेटिव्स आए, ठीक है, सब चुपचाप बैठे हैं, सब चुपचाप बैठे हैं, एंड देन सडनली वन पर्सन वुड स्टार्ट वेदर के बारे में बात करना कि गर्मी बड़ी पै रही है आजकल, एंड देन एवरीबडी स्टार्ट्स टॉकिंग, ठीक है। तो मतलब कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करने के लिए जो हम किसी सोशल सेटिंग में, तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने वेदर दी गल करके ना, ही ब्रेक द आइस। ओके, एग्जाम्पल देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग द मैनेजर टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। मीटिंग दे शुरू मैनेजर ने जोक क्रैक करके गल शुरुआत की थी, मतलब गल को, किसी भी कॉन्वर्जेशन को, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां पे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, वहां पे इसको बोलोगे, ब्रेक द आइस। ओके, तो बैठक की शुरुआत प्रबंधक ने माहौल को हल्का करने के लिए, लाइट करने के लिए एक मजाक सुनाया, एक जोक सुनाया। ओके, अब आप इसको सेंटेंस में यूज करके बताओगे मुझे, ब्रेक द आइस। मीनिंग समझ में आया? यस नो इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं पता चलता ना, चैट बॉक्स में फटाफट लिख दिया करो कि रिपीट कर दो, नहीं समझ आ रहा, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग देयर एंड वेटिंग। फटाफट बनाओ इसका सेंटेंस, वी हैव मोर इडियम्स टू गो। ब्रेक द आइस मीन्स टू इनिशिएट अ कॉन्वर्जेशन, कोई गलबात ਦੀ शुरुआत करनी किसी सोशल इवेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ किसी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, सो दैट कि सब लोग कंफर्टेबल हो जाएं, ठीक है, जस्ट शुरुआत करने के लिए। कई बार क्या होता है कि लोग सोशल किसी मीटिंग पे सिर्फ हेजिटेट कर रहे होते हैं। अंकल ब्रेक द आइस ड्यूरिंग ए फैमिली गेट टुगेदर। यस, यस, करेक्ट, ऑल राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम, हिट द नेल ऑन द हेड। अब नेल क्या होता है? NAIL। नेल के दो मतलब होते हैं, एक तो होते हैं हमारे नेल्स, ठीक है, दूसरा होता है किल, किली बोलते हैं जिसको, किसी पे नेल के ऊपर जिसपे हम कोई चीज हैंग करते हैं, ठीक है। तो हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब क्या होता है कि परफेक्टली, जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि अपनी ना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, और सामने वाला बोलता है बिल्कुल सही किया, राइट। तो मतलब जो एग्जैक्टली बिल्कुल ऑन पॉइंट बात होती है, कि ऑन द पॉइंट हमने बात करी है, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करी, उसमें बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जाम्पल देखो, टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली what is causing a situation or problem. Okay, now let's see. When she said the project lacked resources, she hit the nail on the head. ਜਦੋਂ उसने क्या कि प्रोजेक्ट विच रिसोर्सेज की कमी है, मतलब रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, लाइक हो सकता है फोन्स की कमी हो, इंटरनेट कनेक्शन नहीं ठीक से चल रहा हो, लाइक रिसोर्सेज की कमी है, उसने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल सही किया नु ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हिट द नेल ऑन द हेड, इट्स द idiom। ओके,
तो इसको सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करो। हिट द नेल ऑन द हेड। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। इट्स वेरी कॉमनली यूज, बहुत कॉमनली यूज किया जाता है दिस idiom and phrase. Try and make a sentence, then we'll move on to the next one. Hit the nail on the head. Make it fast. ओके, जस्ट इन केस देखो, कई बार ऐसा होता है कि इमिजिएटली कुछ माइंड में नहीं आता, इतनी जल्दी सेंटेंसेस नहीं बनते। तो आप फेसबुक के ऊपर भी जो हमारा ग्रुप बना हुआ है वहां पे भी आप भेज सकते हो। मैं आप मीटिंग के एंड में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी एंड आई करेक्ट, वहां पे फीडबैक आपको मिल जाएगा। सो राइट नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। द लास्ट वन ऑफ द डे इज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक होता है खाने वाला पीस ऑफ केक नहीं, समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू। एग्जाम्पल फॉर हिम सॉल्विंग दैट मैथ प्रॉब्लम वाज अ पीस ऑफ केक। उसलिए वो मैथ दी समस्या हल करना बहुत आसान सी। ठीक है, अब जनरली बोलते हैं ना कि इट्स अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश सीखना इज अ पीस ऑफ केक इफ यू डू इट डेली, इफ यू डू द प्रैक्टिस डेली, देन स्पीकिंग इंग्लिश विल बी अ पीस ऑफ केक, इट विल बी वेरी इजी टू डू। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, ड्राइविंग द कार इज अ पीस ऑफ केक। ओके, बनाओ इसका सेंटेंस, ये तो बहुत ईजी है। और नेगेटिव में भी बोल सकते हो, लाइक clearing the IAS exam is not a piece of cake, like it's not something very easy to do. Quickly make sentences. देखो, सेंटेंस बनाओगे ना सही गलत, तो याद रहेंगी चीजें। अगर सिर्फ स्क्रीन पे देखोगे कि हाँ जी समझ आ गया, बाद में उसको सेंटेंस में यूज नहीं करोगे, you'll not be able to remember that for a long time. भूल जाओगे चीजें। ऐसे तो इंस्टाग्राम यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी चीजें आती हैं कि देखा, सेंटेंस मीनिंग देखे, रील देखी, हाँ ठीक है, लेकिन बाद में कभी उसको अपनी लाइफ में यूज ही नहीं किया, so it's of no use. Study is not a piece of cake. Okay, fine, we can consider that. Do we have any more sentences? Make it fast. इसमें चंद्रल का अगर आप कोई सब्जेक्ट भी मैटर कर दोगे ना, लाइक जैसे मैथ्स स्टडी या कोई और सब्जेक्ट, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जनरली आपने लिखा है। ओके, सो मूविंग ऑन, लेट्स रिवाइज द वर्ड्स दैट वी डिड टुडे। फर्स्ट वर्ड इज arduous, means difficult. Learning English vocabulary is a piece of cake. Okay, Manna, thank you so much. Okay, first word is arduous. Second, meticulous. Third, proficient. Fourth, astute. Cognizant. Okay, अब जैसे मैं बोल रही हूँ मेरे पीछे पीछे रिवाइज भी करो। arduous, meticulous, proficient, astute, cognizant. Okay, yes Manat, this is correct. Okay, now again I have another bonus content for you. This is a quick grammar tip. तो जनरली जैसे मैं स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करती हूँ या फिर जनरली जब मैं उनका स्पीकिंग टेस्ट लेती हूँ, तो दीज आर द कॉमनली, जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं बच्चे, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी कंफ्यूजिंग। फर्स्ट देखो, देयर देयर दे आर। ओके, अब तीनों में देखो स्पेलिंग देखो ध्यान से। फर्स्ट इज THEIR, second is THERE, and third is they and then apostrophe S and RE. इनका डिफरेंस पता सबको? yes no in the chat box, फटाफट से, without taking so much of time. If you're confident कि ये तीनों का मतलब आपको पता है, type yes no in the chat box. Okay, फटाफट से, it's not a difficult question, कोई सेंटेंस नहीं बनाना, फटाफट से लिखो चैट बॉक्स पे। लाइक आई सेड, डे वन पे मैंने बोला था इट्स गोइंग टू बी इंटरेक्टिव। अगर मैंने ही बोलना है तो फिर तो रिकॉर्डेड यूट्यूब वीडियो से आप बहुत पहले ही सीख चुके होते चीजें। इंटरेक्टिव और लाइव का मकसद ही ये है कि आप डायरेक्टली मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सको। मे बी, ओके, ऑल राइट। सो अभी ये मे बी को यस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है दैट इज, देखो,
देयर, THEIR, इसका मतलब होता है पोजेसिव, मतलब ओदा, ठीक है, ओदा या ओनादा। इसका ये इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, लेकिन मैं आपको याद रखने के लिए एक टिप दे रही हूँ, ठीक है। THEIR, सेकंड वाले में क्या है, THERE। तो THEIR में ना, आई क्या होता है, मैं मतलब किसी का अपनी कोई चीज, ठीक है, या मेरी या किसी और की, तो मतलब पोजेसिव। एग्जाम्पल, बिलोंगिंग टू देम। फॉर एग्जाम्पल, देयर हाउस इज वेरी बिग, ओना का घर बहुत बड़ा है, मतलब वो उनकी पर्सनल चीज है। आई मीन्स बिलोंगिंग, ठीक है। आई से आप थोड़ा सा रिलेट, ये कोई रूल नहीं है, आप अगेन, ये इंग्लिश का कोई रूल नहीं है कि इसमें ऐसे आप याद कर सकते हो। देयर, यस, पर्सन के लिए यूज करेंगे, सिंगल प्लूरल के लिए, ठीक है, ओना दा। सिंगल पर्सन होगा तो हिज बोलेंगे ना, हिज हाउस। अब ज्यादा लोग हैं तो देयर हाउस, ओना दा, ठीक है, उनका। देखो, ओना दा घर बहुत बड़ा है, उनका घर बहुत बड़ा है, ठीक है। जब किसी के पोजेशन की बात करें, जो चीज किसी की है, तो उसके बारे में। करेक्ट, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, THERE, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। हेयर का मतलब क्या होता है, HERE मतलब इथे। देयर का मतलब होता है ओथे, ठीक है। सो रेफर्स टू अ प्लेस, द बुक इज ओवर देयर, किताब ओथे है, ओके। प्लीज गो देयर, प्लीज कम हेयर, समझ आया। कम हेयर, गो देयर। आई हैव विजिटेड देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, उत्थे जाना चाहता है, लाइक ਇਹਦਾ मतलब होता है किसी प्लेस को रेफर कर रहे हैं। इसमें किसी की पोजेशन की बात नहीं हो रही। तो जनरली गलती क्या होती है, दिस बुक इज ओवर देयर में स्पेलिंग THEIR लिख देते हैं। अब अगर बोलना होगा देयर बुक्स आर वेरी गुड, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ किताबां बहुत चंगियां ने, तो कौन से वाला लगेगा, फटाफट चैट में लिखो। अगर मुझे ये बोलना होगा कि ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ किताबां बहुत चंगियां ने, देयर बुक्स आर वेरी गुड, तो क्या लगेगा उसमें, ERE वाला लगेगा या EIR वाला लगेगा। मेक इट फास्ट। करेक्ट, चंद्रिका करेक्ट, THEIR, क्योंकि उन ओना दी गल हो रही है ना, जो किसी की चीज है। लास्ट वर्ड दे आर, दिस इज वेरी इजी। मतलब दे आर का ये शॉर्ट फॉर्म होता है, दे आर गोइंग टू द मार्केट, वो बाजार जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दे आर। I hope now you know the better difference between all the three things that we have covered. All right, so that is end, almost end of the meeting, but एक छोटा सा concept और है, तो अभी leave मत करना, stay tuned. So Facebook के ऊपर this thing you can follow, मैं आपको link end of the meeting में share कर दूंगी, just follow this group. इस पे अटेंडेंस मार्क कर दो डे वाइज, ओके। तो जो लोग अटेंडेंस मार्क करेंगे उनको कुछ ना कुछ बोनस कंटेंट और मिलने वाला है, ठीक है। एंड अगेन इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है उसके। और सेकेंडली, उसको ज्वाइन करने का ये बेनिफिट है कि डिस्कशन पेज पे जाके अगर कुछ भी डाउट है, कोई सेंटेंस है जो आप साथ साथ में नहीं बना पाए, या फिर ऐसे होता है कि मेरा ध्यान नहीं गया, क्योंकि देयर कुड बी अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, मैंने उनका चेक कर लिया, आपका नहीं चेक किया, तो यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो एंड यू विल गेट द फीडबैक, ओके। नेक्स्ट रिवाइज करते हैं दोबारा से। आर्जुअस, मेरे मेरे बाद रिपीट करो, आर्जुअस, meticulous, proficient, astute, cognizant. Okay, these are the words that we did. Now it's time for the weekly revision. Can you imagine that you have learned 35 new words in just 7 days? So ये हमने words day 1 पे करे थे, ठीक है। This is for the day 1. तो अगर आप रोज के 5 वर्ड्स सीखे, तो हमने 35 न्यू वर्ड्स सीखे हैं, जस्ट इमेजिन। एंड यू नो हाउ टू मेक द सेंटेंस एंड यू नो द मीनिंग इन हिंदी पंजाबी। फर्स्ट, डे 1 वर्ड्स, एक्सप्लोर, फ्रेंडशिप, इंप्रूव, सेलिब्रेट, रेजिलियंट। चैट बॉक्स में लिखो, किसी वर्ड का मीनिंग अगर नहीं समझ आ रहा अभी पूछो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अगर कुछ भी मिस हो गया है फटाफट से पूछ सकते हो। एंड वी डोंट हैव मच टाइम, फटाफट से इसका क्वेश्चन पूछो। डे 1 क्लियर? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दो क्लियर। मेक इट फास्ट। रिजिलियंट का मतलब होता है लचकीला, जैसे कि किसी के नेचर के बारे में भी बोल सकते हो, किसी के किसी, जैसे बैम्बू, बैम्बू इज ऑफ रिजिलियंट नेचर, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का एक तरह से आप बोल सकते हो इसको सिनोनिम। ऑल क्लियर? बाकी लोगों को कोई डाउट डे 1 की वर्ड्स में से?
Okay, moving on to the day 2. Curious, tedious, knowledge, motivate, perseverance. Any doubt in the day 2 words? Day 2 के words में कोई भी doubt chat box में लिखो, मैं explain करूंगी with example. Day 2 words: curious, tedious, knowledge, motivate, perseverance. Any doubt? Yes, no, maybe in the chat box, please. Make it interactive. सभी में डाउट हो तो लिख दो all of them. No problem. अगर सभी वर्ड्स नहीं आते वो भी लिख सकते हो. आई डोंट माइंड. ओके, बट प्लीज मेक इट इंटरेक्टिव. और एवरीवन पे लिखो, ठीक है? आप पर्सनली मुझे मैसेज भेज रहे हो, एवरीवन पे चेंज करके भेजो. ओके, ऑल क्लियर. ओके, फाइन. डे 3. इंक्विजिटिव, डिलिजेंट, आर्टिकुलेट, परप्लेक्स, ऑब्लिवियस. डे 3 पे थोड़ा सा देखो हमने लेवल अप किया. कोई डाउट डे 3 वर्ड्स में से? मेक इट फास्ट, फटाफट से पूछो. डे 4. cautious, conscientious, grateful, enhance, ubiquitous. सावधानी. conscientious के मिलता जुलता आज भी हमने वर्ड किया है, ठीक है? grateful, enhance, ubiquitous. Any doubt? Yes, no in the chat box. Day 5. ambitious, reluctant, eloquent, imminent, disseminate. Day 6. frugal, impartial, innovative, pragmatic, alleviate. डे 7 आज ही हमने किया है. आर्जुअस, मेटिकुलस, प्रोफिशिएंट, astute, cognizant. मेटिकुलस जो मैं बोल रही थी आज हमने मिलता जुलता वर्ड किया है. कॉन्सेंशियस. एलोक्वेंट का मतलब होता है चंद्रल का जो रीडिंग और राइटिंग में बोलते हैं इसको, जिसकी बहुत अच्छे से राइटिंग हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही डिलीवर्ड एन एलोक्वेंट स्पीच. उसकी जो स्पीच थी वो बहुत क्लियर थी, साफ स्पष्ट. मतलब इसको एक तरह से एडजेक्टिव यूज करते हैं राइटिंग और रीडिंग में स्पेसिफिकली, ठीक है? उसके अलावा अगर किसी को कोई भी डाउट है, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, लेकिन आप जो मैं ग्रुप का आपको लिंक शेयर करूंगी उसमें आप कोई भी वर्ड है इसका मीनिंग आपको नहीं समझ आया, आप मुझसे पूछ सकते हो. सो जस्ट इमेजिन ये सारे वर्ड्स, दीज आर द पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी नाउ. जस्ट इमेजिन. ओके, रिवीजन करोगे तो इसको डेली यूज करना शुरू करोगे तो देखो कितना आपकी जो वोकैब है वो कितनी इंप्रूव हो जाएगी और आपकी स्पीकिंग कितनी एडवांस लेवल पे जा रही है, देखो, डे बाय डे. एंड यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट. सिर्फ कंसिस्टेंट रहना है आपको. डेली 8:30 ज्वाइन करना है, दैट्स इट. ओके, so these are all the words that we have discussed. Day 1, day 2, day 3, 4, 5, 6, 7. In just 1 week देखो हमने कितने सारे वर्ड्स लर्न किए. कोई भी डाउट है इन वर्ड्स में से आप मुझसे पूछ सकते हो. एनी क्वेश्चन from these words? Sukhpal has just joined now. Please join at 8:25 so that you don't miss anything. Okay, so I will be sharing the passage using the today's 5 words. ठीक है, मैं व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक आपको शेयर कर देती हूँ, नोट्स भी उसमें शेयर हो जाएंगे. प्लीज फॉलो द यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप एंड फेसबुक इवेंट. मैं आपको भी लिंक्स शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में. फटाफट से जाके ज्वाइन कर लो so that you don't miss anything. My screen might not be visible to you. Give me just a moment. इन द मीन टाइम मैं लिंक्स कॉपी कर रही हूँ. कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आ रहा, अभी डाउट है तो पूछ लो. आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस. कोई सेंटेंस फॉर्मेशन में नहीं पता चल रहा कैसे करना है वो भी पूछ सकते हो. एंड स्टूडेंट्स जिन्होंने आज लेट ज्वाइन किया था, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सको. ओके, from my side, that is it. Thank you so much for your time, and I'll see you tomorrow, 8:25, and have a good evening. Bye-bye. Have a good rest of the day. Bye-bye.